Good evening to all. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this video, very good afternoon, and I think all of you are very good. In this quarantine days, I think this lockdown is going on. So this classes actually is going on actually this through this video classes, and I think you all are well and just safe from being connected from being infected from this deadly virus. Okay, so in this video just we are going to discuss the functions actually for class 11. Okay, so this class 11 lecture. So this in the last video I think the various 2 or 3 lectures were there regarding the function chapter. So in this video just we are going to discuss different types of functions. Okay, so in our last video I think domain and range of some functions were discussed. In this video just we are going to cover different types of functions. Okay, so I think in the first lecture I had written the types of functions, how many types of the functions are, and that was written also. So just we are going to discuss one by one this function types. Okay, so very important part, very important lecture it is. Just you should actually watch the video fully, and just after seeing the whole video I think you will get the idea how many types of the functions and which type of functions can be sorted or it can be solved by which process. Okay, so this lecture is I think is very important lecture for class 11 class and 11 class students. So in this video just write the first part, write the first function here. Okay, so if you like my lectures, if you like my videos, if you like me also, so please subscribe, like and share my channel. Okay, so can I can actually, so that I can provide this kind of videos to my students, to the whole student community of my country. Okay, so that they can enjoy their classes also. Okay, now first point, modulus function. Modulus function, give the heading modulus function. Okay, so the whole lecture is for the types of function. Okay, first one is modulus function. Okay, modulus function. मॉड्यूलस जैसे हम लोग जानते हैं, मॉड्यूलस नॉर्मली मॉड्यूलस जैसे हम लोग प्रैक्टिकली अगर उसको एक्सप्रेस करें, ठीक है, मॉड्यूलस का काम क्या होता है? मॉड्यूलस का काम होता है कि कोई भी निगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है. ठीक है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली उसको एग्जांपल दूं, देखो कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है या फिर कोई निगेटिव वर्क्स कर रहा है क्लास में, कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है क्लास में, तो टीचर क्या करता है? 2 गाल पे थप्पड़ मारूंगा. एक ये बात, 2 गाल पे थप्पड़ मारना, दैट मीन्स क्या है? थप्पड़ मारने से क्या होता है? आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये चीज जो है, नेगेटिव जो चीज है वो रिपीट नहीं करेंगे. दैट मीन्स ये थप्पड़ का काम क्या होता है? कोई भी निगेटिव एक्टिविटी को वो पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है. दोनों गाल पे थप्पड़. ठीक है, तो ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा होता है, एफ एक्स पी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन. एक्स यहां पर तुम हो और ये 2 गाल पे थप्पड़. मतलब तुम अगर यहां पर नेगेटिव एक्टिविटी अगर करोगे, ये थप्पड़ मिलने के बाद ये पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स एक्स के जगह में तुम पॉजिटिव वैल्यू बिठाओ, पॉजिटिव एक्टिविटी करोगे तो थप्पड़ का काम ही नहीं है कुछ. दैट मीन्स मॉड का काम नहीं है. मॉड यहाँ पर जैसे मॉड 1, ये तो पॉजिटिव है, आंसर 1 ही आएगा. अगर यहाँ पर मॉड के अंदर -1, दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पर माइनस आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, दैट मीन्स वो थप्पड़ का काम क्या होता है? वो प्लस में कन्वर्ट करके दे देगा आपको. ओके, है +1, है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये मॉड्यूलस का काम क्या होता है? कोई भी नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है. ठीक है, ये कैसे होता है? ये है थोड़ा देखो.
यहां पर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब ये होता है, यहां से दो कंडीशन मिलता है। एक होता है मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू चूज करोगे, दैट मींस मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स। कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज चूज करोगे तो ये तो मॉड के अंदर जो है पॉजिटिव वैल्यू बैठेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू बिठाने से तो मॉड का कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पर मॉड इज यूजलेस हियर। ओके, सो मॉड यहाँ पर ओमिट तुम कर सकते हो। नॉर्मल पॉजिटिव नंबर अगर हो, पॉजिटिव नंबर को ही तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट केस ये देखो, माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, यहां पर ही मॉड का मेन फंक्शन होता है। एक्स का वैल्यू लेस देन 0, दैट मींस निगेटिव वैल्यू चूज कर रहे हो, दैट मींस कोई भी एक्टिविटी यहां पर निगेटिव एक्टिविटी हो रहा है, तब जाके मॉड का काम शुरू होता है। मॉड क्या करता है, ये निगेटिव एक्टिविटी को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है। कैसे, देखो एक्स लेस देन 0 वैल्यू चूज कर रहा है, दैट मींस -1 चूज करते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या चूज कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू -1 चूज कर रहे हैं। सपोज अब एक्स का वैल्यू -1, दैट मींस यहां पर अगर पुट करते हैं हम लोग, माइनस तो है ही, एस फॉर्मूला तो माइनस तो है ही, एक्स के जगह में -1, दैट मींस माइनस माइनस क्या होता है, +1, दैट मींस +1 में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस यहां पर कोई भी नेगेटिव एक्स का वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू चूज करोगे, उसका काम क्या होता है, मॉड का काम वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, अच्छा यहां पर इस टाइप का जो कार्व है या ये मॉड्यूलस फंक्शन का, इसका फिगर क्या बनता है, एक्स का जितना तुम पॉजिटिव वैल्यू चूज करोगे, दैट मींस एक्स का वैल्यू 1, एफ एक्स, ये मॉड एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू 2, मॉड एक्स का वैल्यू 2 ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू 3, मॉड एक्स का वैल्यू 3 ही मिलेगा। फिर एक्स का वैल्यू 4, मॉड एक्स का वैल्यू 4 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से ग्रेटर वैल्यू चूज कर रहा हूं, है कि नहीं। दैट मींस यहाँ पर ये सब वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, एक्स का वैल्यू 1, मॉड एक्स का वैल्यू भी 1, दैट मींस फर्स्ट पॉइंट इज 1,1। फिर 2,2 मिलेगा, 3,3 मिलेगा, 4,4 मिलेगा, 5,5 मिलेगा, 6,6, 7,7, 8,8। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो एक चीज ये है, मिडिल में और एक भी केस बनता है, यहां पर 0 होता है तब x इक्वल्स टू 0, मतलब मॉड एक्स की 3 केस मिलता है। दैट मींस यहां पर अगर कोई भी एक्टिविटी, ना ही तुम पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हो, ना ही नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे बैठे हो तुम। ठीक है, पॉजिटिव एक्टिविटी क्या होता है, जब कोई भी अटेंटिवली क्लास करता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, टीचर को क्वेश्चन कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है। अब नेगेटिव एक्टिविटी का, कोई टीचर को डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, ठीक तरह से पढ़ाने के लिए नहीं दे रहा है क्लास में, वो नेगेटिव एक्टिविटी होता है। और उस टाइप का स्टूडेंट जो क्लास में सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है, मतलब पपेट की तरह है, मूर्ति की तरह यहाँ पर बैठा रहता है, ना ही वो पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहा है, ना ही वो नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइप का स्टूडेंट जो है उसके ऊपर मॉड का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 0 ले लिया गया है, जिसका कोई भी एक्टिविटी नहीं है, पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, दैट मींस 0। तो एक्स का वैल्यू 0, तो मॉड का काम भी कुछ नहीं है, वो 0 ही दे देता है। ठीक है, तो दैट मींस एक्स का वैल्यू जो 0 हो, मॉड एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, 0 ही निकलता है। दैट मींस 0,0 पॉइंट भी मिलता है। तो अगर मैं ये ऐड करूं, ये सब पॉइंट्स अगर ऐड करूं, देखो ऐसा कुछ फिगर मिलता है कि नहीं। अच्छा, ये तो गया पॉजिटिव साइड, एक्स का सब पॉजिटिव वैल्यूज तुमने चूज किया, चला गया ऐसा। अब है एक्स का नेगेटिव वैल्यूज चूज करना है आपको। ठीक है, तो एक्स का नेगेटिव वैल्यूज चूज जब करेंगे, सपोज एक्स का वैल्यू -1, दैट मींस -1 इस तरफ आएगा। y का वैल्यू क्या होगा, मॉड एक्स के अंदर अगर मैं -1 पुट करूं, देखो मैंने कुछ देर पहले दिखाया है, माइनस नेगेटिव एक्टिविटी, कोई भी नेगेटिव नंबर तुम बिठाओगे, मॉड का क्या होता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है। दैट मींस -1 बिठाओ, -2 बिठाओ, -3 बिठाओ, -4 बिठाओ, कुछ भी नेगेटिव नंबर यहाँ पर बिठाओ मॉड के अंदर, वो प्लस में कन्वर्ट करके दे देता है। दैट मींस एक्स का वैल्यू -1, मॉड एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, +1। एक्स का वैल्यू -2, +2 हो जाता है, -3 +3 हो जाता है, -4 +4 हो जाता है। दैट मींस ये जो पॉइंट है, ये देखो -1,1, -2,2, -3,3, -4,4, -5,5, -6,6, -7,7 ऐसे कुछ मिलता है, और 0,0 तो है ही। तो ये दैट मींस अगर मैं ज्वाइन करूं, इस टाइप का कुछ फिगर मिलता है। दैट मींस ये जो फिगर है ना, इसको बोला जाता है मॉड एक्स फिगर, एफ एक्स इक्वल्स टू
मॉड एक्स फिगर। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये तो गया नॉर्मल एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, 0। एक्स का एक्सप्रेशन दैट मींस यहां पर एक्स सिर्फ एक्स है, दैट मींस अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मींस एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। दैट मींस यहां से 0 से देखो ये वी शेप जो है, वी शेप 0 से शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर सपोज ये थोड़ा देखो, ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पार्ट मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज क्या दिया गया है, मॉड एक्स प्लस 1 दिया गया है, मॉड एक्स प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो मॉड एक्स प्लस 1 का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है, तब तुम कंसीडर कर सकते हो इस टाइप का ही। देखो मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक्स के जगह एक्स प्लस 1 है, तो वही आप लिखना है यहाँ पर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होता है जब एक्स प्लस 1 ये ऐसे लिख लो, जब एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 जब लेस देन 0। और यहाँ पर ये देखो, ये जब एक्स का वैल्यू 0 होता है, एक्स का वैल्यू जब 0 होता है तब क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 जब होता है तब क्या होता है, यहाँ पर है एक्स का वैल्यू जब यहाँ पर ये 2 केस निकलता है ना, देखो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 जब लेस देन 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ पर वहां पर मॉड एक्स था इसलिए प्लस एक्स हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक्स के जगह में क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 लेस देन 0, 2 केस मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, देखो यहाँ इसका फिगर ये सब देख लिया ना आपने, है ठीक तरह से मॉड्यूलस फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को ठीक तरह से एकदम आराम से देखना है। तो ये देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। अच्छा, ये 2 केस तो है हम लोग के पास। ओके, और यहाँ पर जो है एक्स प्लस 1 जब 0 होता है, इक्वल्स टू जब 0 होता है तब माइनस 1 होता है। आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1 है ना, देखो तो है कि नहीं, माइनस 1 होता है। एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1 होता है कि नहीं। ठीक है, हो गया। फिर अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करूं, यहां पर x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1, मॉड के अंदर क्या है, x प्लस 1। इसको अगर मैं इक्वल्स टू एक इक्वेशन बना लूं, x का वैल्यू क्या निकल रहा है, माइनस 1। तो जहां पर आपको मॉड दिखाई देगा, फिगर तो भी है, भी होता है फिगर, बट यहां पर भी कहां से शुरू हुआ था, 0,0 पॉइंट से, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू 0 है। यहां पर x का वैल्यू क्या है, यहां पर x का वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। दैट मीन्स ये है माइनस 1, तो यहां से ये जो है भी शेप ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर ये भी लिख लो, ये हर जगह है तो ये लिख लो। ठीक है, फिर सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड का जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बार बार हम लोग सपोज ये देखो x माइनस 2। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दैट मींस यहाँ पर 2 केस निकलता है। देखो यहाँ से एक है प्लस x माइनस 2 आएगा जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और एक केस आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा जब x माइनस 2 लेस देन 0। 2 केस है कि नहीं, और एक तो इक्वल्स टू 0 के लिए तो है ही। ठीक है, उसको और क्या कंसीडर करें, तो यहां पर देखो इसमें क्या शेप होगा, देखो यहां पर x का वैल्यू क्या है, 2। x का वैल्यू क्या है, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वहां से आपको x का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो यहां पर x का वैल्यू क्या है, 2। अब 2 यहां पर होगा, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 2 से आपको ऐसे भी शेप यूज करना है। ठीक है, भी होगा है, ये तो कंफर्म है, भी होगा। मॉड जहां पर दिखाई दे आपको भी ही ड्रॉ करना है, बट यहां पर x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कहां से ये भी शुरू होगा, है कि नहीं। ठीक है, लिख लो। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप का ही डिफरेंट टाइप है। एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज
2x माइनस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस वन। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ट्वाइस x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू क्या है, हाफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखो सेम केस ही, यहाँ से दो केस मिलेगा आपको। एक है प्लस 2x माइनस वन, कब होता है, जब 2x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस ऑफ 2x माइनस वन जब 2x माइनस वन लेस देन 0 होता है कि नहीं। दो केस मिलता है, तो फिगर क्या बनेगा, x का वैल्यू क्या मिला है आपको, प्लस हाफ, दैट मीन्स यहाँ पर होगा आसपास, ठीक है। ये x का वैल्यू हाफ ये है, तो यहां से आपको भी शेप ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर और एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का। देखो डिफरेंट है यहाँ पर एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस वन। यहां पर मॉड एक्स का, यहां पर मॉड के अंदर क्या है, एक्स है, दैट मींस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, दैट मींस जो भी भी शेप होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं, होना चाहिए। अच्छा, यहां पर देखो अगर मैं सपोज ये नहीं है, सिर्फ मॉड एक्स है, ठीक है, तो यहां पर देखो 0 से ऐसे शुरू होना चाहिए। देखो मॉड एक्स मतलब सिर्फ ये है, प्लस वन सोचो नहीं है, ठीक है। तो मॉड एक्स का कैसा फिगर होगा, 0 पॉइंट से एक ऐसा एक भी शेप आएगा, है कि नहीं। यहां पर देखो, यहां पर तो मॉड एक्स के साथ एक प्लस वन है। ये प्लस वन जो है ये एफ एक्स का वैल्यू देखो, प्लस वन एड हुआ है ना मॉड एक्स के साथ, ये किसका वैल्यू है, एफ एक्स का, दैट मीन्स y का। एफ एक्स और y एक ही बात होता है, याद रखना, कैलकुलस में भी और एल्जेब्रिकल पार्ट में भी y और एफ एक्स को है, दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, ऐसे मतलब एक ही चीज को वो डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस है, मतलब एक ज्यादा, मॉड एक्स तो है ही, मॉड एक्स का फिगर भी आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब मॉड एक्स तो ही, उसके साथ प्लस वन, प्लस वन मतलब क्या है, ये एफ एक्स का वैल्यू है ना प्लस वन, मतलब y का वैल्यू प्लस वन, दैट मीन्स y का वैल्यू जो है प्लस वन एड होगा, 1 एड होगा, दैट मीन्स y का वैल्यू अगर प्लस वन, दैट मीन्स 1 एड होता है, तो वो क्या पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा या फिर निगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा, एड हो रहा है ना, दैट मीन्स एड हो रहा है, दैट मीन्स ये y एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव होता है। अच्छा, यहां पर तो 0 पॉइंट है। अब y का वैल्यू प्लस वन एड हुआ है, तो एड हुआ है दैट मीन्स पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आएगा ना, जब माइनस होता है तब नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर y का वैल्यू प्लस वन एड हुआ है, तो दैट मीन्स ये तो फिगर है, ये तो मॉड का फिगर तुमने ड्रॉ कर लिया है, ये इट इज ओके। अब जो है प्लस वन एड कर दो, दैट मीन्स ऊपर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ऐड होगा, ऐड होने के बाद यही भी शेप ऐसा बन जाएगा और इसको तुम मिटा दोगे, ओरिजिनल फिगर ये है, ठीक है। अगर यहां पर प्लस 2 होता, तो अगर तो यहां पर 2 यूनिट ऊपर चले जाते, तुम यहां से लेके 2 यूनिट ऊपर चले जाते, मींस यहां से एक भी शेप जो है ऐसे ड्रॉ करते, है कि नहीं। अगर यहां पर माइनस 2 होता, दैट मीन्स y का वैल्यू यहां पर डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, -2, दैट मीन्स ये तो है मॉड एक्स का फिगर, ये तो है मॉड एक्स, इससे आपको -2 मतलब नीचे की तरफ जाना है, दैट मीन्स 2 यूनिट नीचे चलाओगे, दैट मीन्स यहां से एक भी शेप ऐसे बनेगा जब -2 होगा, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर ही आता है, और ये मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और मेनली तो जेडब्ल्यू मतलब मेन और एडवांस के लिए, आईआईटी जेडब्ल्यू के लिए ये मॉड और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दो चीज जो है, देखो क्वेश्चन पेपर तुम खोलो, क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद देखोगे मोस्टली, मतलब दैट मीन्स एवरी ईयर मॉड और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिलेटेड तो क्वेश्चंस 10-12 तो आता ही है हर साल, दैट मीन्स ये मॉड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखना, ठीक है। तो ऐसी आपको ये चीज जो है आपको ड्रॉ करना है, मॉड्यूलस फंक्शन, डिफरेंट मॉड्यूलस फंक्शन आपको दे सकते हैं, ऑल टाइम आपको एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दे देंगे ऐसा तो नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। सपोज अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज
x माइनस 2 प्लस 1, इसका फिगर क्या होगा बोलो तो? पहले तो ये प्लस 1 छोड़ो, x माइनस 2 का फिगर क्या है मुझे बोलो। यहां पर x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? मॉड के अंदर x माइनस 2 है, दैट मींस इक्वल्स टू 0 लिख लेना है, x इक्वल्स टू 2, दैट मींस x का वैल्यू 2 यहां पर होगा, x इक्वल्स टू 2, दैट मींस यहां से v शेप ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है। अब जो है ये तो सिर्फ इसका है, मॉड ऑफ x माइनस 2 का फिगर है। अब प्लस 1, दैट मींस ऊपर के तरफ प्लस 1 यूनिट जाना है, दैट मींस ऊपर के तरफ प्लस 1 यूनिट, दैट मींस ये 1 यूनिट है, दैट मींस फिगर जो है, मेन फिगर जो है वो ये आएगा, दैट मींस इस फिगर का नाम होता है। ये तो ऐसे ही हम लोगों ने डॉटेड इसलिए डॉट दिया है, ये परफेक्ट फिगर नहीं है, हैं? मेन फिगर जो है ऊपर वाला है, ठीक है, हैं? आएगा आपको, ठीक है। फिर ठीक है, फिर हेडिंग दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कुछ थप्पर की तरह ही काम करता है कि नहीं? मॉड की तरह ही थोड़ा बहुत काम करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इंटीजर, यहां पर तो ये वर्ड आपको सुनाई दे रहा है इंटीजर, दैट मीन जो भी यहां पर काम करना है आपको इंटीजर लेके ही डील करना है कि नहीं? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, इस फंक्शन का काम क्या होता है, आप कोई भी नंबर यहां पर यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी चूज कर सकते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नॉन इंटीजर वैल्यूज क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव वैल्यूज भी इंटीजर वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। और नॉन इंटीजर वैल्यूज क्या होता है? जो इंटीजर नहीं है, दैट मींस 1.5 1.75 1.25 1.95 2.5 2. That means all the decimal numbers are the non integer values, non integer numbers. So यहां पर जो है ये इंटीजर फंक्शन का दो टाइप के इंटीजर फंक्शन होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर भी करेंगे, ठीक है। तो लिखो here fx be any real valued function, fx be any real valued function from a to b which is defined by fx equals to ऐसे box of x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मॉड को ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऐसे बॉक्स से डिनोट किया जाता है। ये बॉक्स का काम क्या होता है? x का वैल्यू तुम कुछ भी मिटा सकते हो, इंटीजर वैल्यू या फिर नॉन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉन इंटीजर वैल्यूज यहां पर पुट करोगे तो ये बॉक्स का काम क्या होता है? वो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। जैसे मॉड फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज चूज करोगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है, और यहां पर जो है नॉन इंटीजर वैल्यूज तुम पुट करोगे, उसका ये बॉक्स का काम क्या होता है? वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है देखो, विच इज डिफाइंड बाय दिस where box of x less equals to x, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, दैट मींस ये डिस्कशन है, अभी हम लोग करेंगे, अभी उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी, ठीक है। सो यहां पर ये लेस इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 1.75 चूज कर रहे हैं, 1.75, दैट मींस बॉक्स के अंदर 1.75। देखो अभी बॉक्स के अंदर जो है वो नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो ये बॉक्स का काम क्या होता है? ये 1.75 इस वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। कैसे? देखो आपको देखना है कि 1.75 कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है? 1 और 2 के बीच,
अब 1 और 3 के बीच नहीं करना है, इमीडिएट दो दो इंटीजर लेना है, इमीडिएट, एक पीछे एक सामने, ठीक है। तो 1.75 पीछे क्या होता है, 1 होता है और सामने क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, देखो यहां पर एज द डेफिनेशन देखो, बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स के जगह यहां पर जो भी वैल्यू तुम बिठाओगे, है बॉक्स यूज करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर एक्स से छोटा होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर एक्स का वैल्यू तुमने क्या चूज किया, 1.75। तो जब तुम 1.75 के ऊपर बॉक्स यूज कर दोगे तब इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो है ऑलवेज 1.75 से छोटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ओके। तो 1.75 से छोटा आना चाहिए, दैट मीन्स आंसर के यहां पर 2 होगा या फिर 1 होगा, 1.75 से छोटा आना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला आंसर आएगा। दैट मीन्स जब बॉक्स ऑफ 1.75 के, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करोगे तब आंसर आएगा 1। जो देखो ये आंसर क्या है, ये है ना, लेस इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब तुमने क्या चूज किया था, 1.75, छोटा है ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखो 1.75 से 1 क्या है, छोटा होता है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, whenever this greatest integer function, this box will be used, then you have to collect the smallest integer, smallest nearest integer, nearest integer of the given number. That means 1.75 nearest integer, smallest nearest integer, small nearest, जो भी बोलो, तो ये 1 होता है कि नहीं। So that means और एक एग्जांपल लें, 1.95 ये बॉक्स के अंदर डालो, तो that means 1.95 किसके बीच, 1 और 2 के बीच लाई करता है। तो जब तुम बॉक्स ऑफ 1. दैट मीन्स 1.95 क्या करेगा, बॉक्स यूज करने के बाद ही 1.95 के ऊपर अगर तुम बॉक्स यूज कर लिए तभी वो क्या करेगा, वो आसपास इंटीजर क्या है वो ढूंढेगा। तो आसपास 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसको ही वो कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स आंसर जो है वो 1 है। तो 1 क्या है, लेस इक्वल्स टू 1.95 है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1.95 से 1 तो छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर जो है एक्स से छोटा होना चाहिए। दैट मींस बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर एक्स से छोटा होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है। और एक एग्जांपल ले सकते हो, बॉक्स ऑफ 2.25, इसका आंसर क्या आएगा, 2.25। 2.25 कौन से दोनों के बीच, 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है। तो जब तुम बॉक्स यूज कर दोगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। 2 और 3 के बीच स्मॉलर कौन सा है, 2 है ना, तो दैट मीन्स ये 2 आंसर आएगा। सो दैट मीन्स यहां पर नेगेटिव में भी ऐसे ही काम करेगा, है नेगेटिव में भी तो ऐसे ही काम करेगा सेम। तो नेगेटिव वैल्यूज अगर ले यहां पर कुछ, सपोज x इक्वल्स टू -1.75, अच्छा -1.75 ये कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है, -1 और इधर -2। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, -2 है ना, -1 तो स्मॉलेस्ट नहीं होता है नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर स्मॉलेस्ट कौन था, -2। दैट मींस बॉक्स ऑफ 1.75 दैट इज -1.75 का आंसर क्या होगा, -2। सेम x का वैल्यू अगर मैं सपोज -2.95 चूज करूंगा तो -2.95 ये कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है, -2 और इधर -3। ठीक है, नंबर लाइन सोचो। तो आंसर क्या आएगा, बॉक्स ऑफ -2.95, इसका आंसर क्या आएगा, -3। वेरी सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे ही यहां पर आपको डिफरेंट x का वैल्यू चूज करना है कि नहीं, और डिफरेंट y का वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। तो उसका फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, x का डिफरेंट वैल्यू चूज करो, है x का डिफरेंट वैल्यूज चूज करो, y का डिफरेंट वैल्यूज चूज करो, z का सॉरी क्या बोल रहे हो, x का डिफरेंट वैल्यू चूज करो। तो आपको सपोज यहां पर देखो एक चीज हम लोग बोल रहे हैं, देखो ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, अच्छा x एक्सिस y एक्सिस, ये 0 है, इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं 1, इधर 2 इधर 3 सपोज ले लेते हैं, और इधर -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा तो यहां पर सपोज 0 और 1 के बीच
तुम कोई भी नंबर चूज कर लो, 0 और 1 के बीच तुम कोई भी नंबर यहां पर चूज कर लो, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? तो मीन्स 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच यहाँ पर x का वैल्यू है, तो 0 और 1 के बीच 0.5, 0.75, 0.65, 0.45, 0.95, 0.93, कुछ भी वैल्यू चूज करो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जब बॉक्स यूज कर दोगे तब आंसर क्या कलेक्ट करेगा? वो 0। दैट मीन्स आउटकम तो 0 ही होगा। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच तुम x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। दैट मीन्स 0.5 के लिए भी 0 है, फिर 0.75 के लिए भी 0, 0.95 के लिए भी 0, 0.93 के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है आउटकम ऐसे ही 0 आएगा, ऐसे उसको मार्क करके रखो ऐसे, ठीक है। फिर 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर चूज करो, 1 और 2 के बीच कोई भी डेसिमल नंबर, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.75, 1.85, 1.95, कुछ भी डेसिमल नंबर चूज करो। यहाँ पर बॉक्स यूज करने के बाद 1 और 2 दो इंटीजर है, कौन सा वैल्यू देगा आपको? 1 देगा ना। दैट मीन्स ये 1 यहां पर है, सपोज यहां पर ये 1, ये 2 ऐसा होता है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। आउटकम तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 और 2 के बीच जो है ये ही आएगा 1, ठीक है, हो गया। अब 2 और 3 के बीच जाओ, आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। दैट मीन्स यहां पर होगा कुछ इस तरफ होगा, 2 ही आएगा। 2 और 3 के बीच कुछ भी नंबर लो, आंसर 2 ही आएगा। सेम निगेटिव में चूज करोगे ऐसे ही आएगा, है ऐसे ही आएगा। देखो 0 और -1 के बीच कुछ भी नंबर यहां पर चूज कर लो, आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? देखो है। सो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू कुछ भी तुम 0 और -1 के बीच चूज करो, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर -1 ही आएगा। दैट मीन्स ये -1, ये -2, ये -3, तो 0 और 1 के बीच कुछ भी नंबर चूज करो, आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। दैट मीन्स ये होगा पहला। फिर -1 और -2 के बीच कोई भी नंबर चूज करो, आंसर क्या आएगा? फिर -2 और -3 के बीच अगर कोई भी तुम नंबर लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? -2 और -3 के बीच -3 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इस इंटरवल में देखो y का वैल्यू सिर्फ -3 आ रहा है, बट x का वैल्यू तो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स ये फिगर जो है कुछ इस तरह होगा, बट यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है हर जगह सेम होगा, क्योंकि y का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। y का वैल्यू तो यहाँ पर -3 हो रहा है, तो ऐसे ही वो एक्सटेंड होता जाएगा। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करना हो। फिगर तो ये जस्ट समझने के लिए होता है, ओरिजिनली जो है ये कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आएंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में। जस्ट इसको कर लो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस होगा, ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, है कि नहीं। तो ग्रेटर इक्वल्स टू में क्या होता है? देखो ग्रेटर इक्वल्स टू में क्या होता है? ग्रेटर इक्वल्स टू में देखो ग्रेटर इक्वल्स टू में 1.75 तो लेना है, ठीक है। अब 1.75 कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है? 1 और 2। तो क्या होता है, जब बॉक्स यूज करोगे ना तुम 1.75 के ऊपर, तब वो आंसर ढूंढेगा, इंटीजर ही ढूंढेगा। अब इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसने स्मॉलेस्ट इंटीजर कलेक्ट किया था। अब उसमें जो है, क्योंकि देखो बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर एक्स से ग्रेटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू 1.75 चूज कर रहे हैं, तब बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 1.75 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस इंटरवल में 1.75 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर है? 2। दैट मींस बॉक्स ऑफ 1.75 का आंसर 2 होता है। और ये बॉक्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट नहीं। एक क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू तुम 1.95 लोगे तो 1.95 1 और 2 के बीच लाई करता है। दैट मींस जब तुम बॉक्स ऑफ 1.95 यूज करोगे तब आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 देखो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू 1.75 है ना, सॉरी 1.95 है ना। यही तो डेफिनेशन देखो, ग्रेटर इक्वल्स टू x होना चाहिए।
बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर, तो बॉक्स ऑफ इसका आंसर तो 2 आ रहा है, इसका आंसर देखो ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स है, एक्स मतलब 1.95 हम लोगों ने चूज किया है कि नहीं। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब होगा तब बॉक्स क्या करेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर को कलेक्ट करेगा, और जब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स होगा तब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, जैसे सपोज लाइक x इक्वल्स 2.25, तो क्या होता है 2.25 कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है, 2 और 3 के बीच लाई करेगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो क्या करेगा, वो ये ग्रेटर वाला चूज करेगा। दैट मींस बॉक्स ऑफ 2.25 का आंसर होगा 3 जब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तब 3 चूज करेगा। और 3 देखो क्या होता है, x का वैल्यू तुमने क्या चूज किया था 2.25 से 3 ग्रेटर है ना। देखो ये बॉक्स ऑफ x है, 3 मतलब क्या, बॉक्स ऑफ x का आंसर नहीं मिला है ना, ग्रेटर इक्वल्स टू ये क्या है x है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू x। दैट मींस आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर में जो ग्रेटर इंटीजर है उसको चूज करना है, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तब स्मॉलर इंटीजर को चूज करना है। उल्टा होता है, थोड़ा याद रखना, उसको याद रखो, यही जरूरत होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में स्मॉलर वाला चूज कर लोगे और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर वाला चूज कर लोगे, बस हो गया। यहाँ पर सिर्फ यही चीज याद रखो, बहुत सफिशिएंट होता है मोर देन सफिशिएंट। ओके ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स जो है आज कवर किया है उसका भी फिगर हो सकता है? फिगर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग यहाँ पर है, तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। देखो यहाँ पर सपोज ये है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 और ये -3, ये -1 -2 और -3 है कि नहीं। अच्छा तो यहां पर देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 और 1 के बीच जो भी तुम नंबर चूज करोगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मींस यहां से लेके ये y का वैल्यू 1 आएगा ना, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा ना, तो वही 1 के यहां पर बराबर आपको ऐसे ही लाइन खींचना है। फिर 1 और 2 के बीच जो भी तुम नंबर चूज करोगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसका आंसर क्या आएगा 2। ओके, फिर 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर चूज करो ये 3 ही आएगा, है कि नहीं। अच्छा अब नेगेटिव वैल्यू में आओ, 0 और -1 के बीच जो भी तुम नंबर चूज करोगे ग्रेटर कौन सा है, 0 या फिर -1, 0 है। दैट मींस यहाँ पर ये फिगर बनेगा। -1 और -2 के बीच कुछ भी तुम नंबर्स लो, बॉक्स यूज करने के बाद वो ग्रेटर इंटीजर चूज करेगा। दैट मींस -1, दैट मींस -1 कहां पर, ये इसके बराबर आपको ऐसे खींचना है, क्योंकि -1 और -2 यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मींस कम हो रहा है, बट y का वैल्यू तो -1 होता रहेगा, है कि नहीं। फिर -2 और -3 के बीच कुछ भी नंबर से यहाँ पर चूज करो, क्या आएगा आंसर -2 आएगा। दैट मींस देखो ऐसा कुछ आएगा फिगर। तो ये होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, है कि नहीं। तुम यहाँ पर पॉइंट्स निकाल के भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, पॉइंट्स निकाल के करो ना, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सपोज x का वैल्यू 1.5, x का वैल्यू 1.75, x का वैल्यू 1.95 है, जो भी चूज करो। बॉक्स ऑफ x का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बॉक्स ऑफ x का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बॉक्स ऑफ x का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए देखो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफ x आउटपुट, ये तो आउटपुट है ना, आउटपुट मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, y का वैल्यू तो ऐसे यूनिफॉर्मली जा रहा है। इसलिए देखो ये यूनिफॉर्मली लेके दिया गया है ना, देखो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म जा रहा है, y का वैल्यू तो यूनिफॉर्म जा रहा है, क्योंकि ये y ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ रहा है, बट y का वैल्यू ये 1 में ही फिक्स्ड है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में, है कि नहीं। इसलिए ये फिगर देखो और ये पॉइंट बनाओ, देखो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बात मेन चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको दो इंटीजर के बीच कुछ भी नंबर्स लेना है, जो स्मॉलर इंटीजर होगा वही आंसर होगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो दो इंटीजर के बीच लाई करता है नंबर, उसमें जो ग्रेटर इंटीजर होता है वो होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये
मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ही डिस्कस करना था, क्योंकि ये तीन चीज जो है उसके ऊपर पूरा क्लास जेडब्ल्यू मेन, एडवांस, सब एग्जाम्स जो है डिपेंड करता है। जिसका ये मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट ये क्लियर हो गया, उसका सब क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, सो आप लोगों को अगर लेक्चर्स, ये सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर करना है, ठीक है। और आप लोग जो मुझे जो ये सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी मच थैंक यू टू ऑल, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, एंड इन द नियरेस्ट फ्यूचर आई विल support you a lot. Okay, just no need to take the tuitions here, just through these videos, through my channel, you will get all the ingredients and all the things and all the discussions regarding my subject. Okay, and you will get 100 out of 100. It is my guarantee that whatever the board it is, CBSE, ICSE, state board, whatever it is, just you will get 100 out of 100 in my subject. It is my guarantee. I am giving you the assurance. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो। ओके, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय, जय हिंद।